Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining. Welcome to another round of our exciting workshop on how to use LinkedIn. In this session, we have partnered with the students of our prestigious International Islamia University, Islamabad, and is brought to you all by Circle Women Pakistan. Circle Women's mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session, um, today's session with this university will be conducted by Ms. Faiza Tasneem, who is a CIPD UK graduate with 15 plus years experience in HR, training, people analytics, and OD. She's also a policy advisor to Connective Consultant, a youth lead project meant to disseminate information and training to youth. She runs a YouTube channel, Talk Shop by Faiza Tasneem, and blogs about life on Mute Muser blog at the rate wordpress.com. She's keen on collaboration with public and private sector for research projects on women empowerment, developing human-centered work environment, and youth development. Without further ado, I'd like Ms. Faiza to take over. Thank you so much, everyone. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And I warmly welcome all of you to this particular opportunity to be talking to each other and learning from each other. Um, I hope everyone is comfortable with me talking in English. I'll punctuate it with Urdu as well because I know we need to keep it bilingual. So आज की वर्कशॉप में इंशाल्लाह जिन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली यंग जनरेशन के लिए यूथ के लिए जो अभी पढ़े हैं और अपना जो जॉब वर्ल्ड है उसमें उन्होंने अभी जाना है सो these are very important times very critical times for all of us and LinkedIn can play a very important role in making sure that you look right for the employer. What I mean by looking right is that your LinkedIn is going to become a website of your own. It's a pre-platform. So बहुत सारे लोग ये डिबेट करते हैं हमें लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए सो एकेडमिकली अगर आप बात करें तो ये लिंक्डइन पे अकाउंट होना जरूरी है जैसे फेसबुक पे दुनिया जहान के लोग होते हैं चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से है यू कांट हियर मी The mic seems to be working at my end. No, Faiza, we can hear you perfectly. Okay, fine. Right. अगर कोई किसी बच्चे ने अपने सेल फोन से ज्वाइन किया है हमें तो उनको अपने सेल फोन की सेटिंग होती है एक उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा अगर आपने अपने सेल फोन से हमें ज्वाइन किया है तो वहाँ पे जो वो माइक का बटन है उस पर क्लिक करिए वो आपको कॉल ओवर द इंटरनेट के बारे में ऑप्शन देगा उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपकी आवाज मेरी आवाज आपको चली जाएगी राइट सो वी आर गोइंग टू do this. I'm just waiting for a few more minutes because there are people in the waiting room who are joining us. So there are, yes, so I'm just helping everyone join us. So LinkedIn is like I said, it's a platform for you. It's a website for you. हम सब अपनी वेबसाइट नहीं बना पाते किसी भी वजह से सो लिंक्डइन हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम अपनी वेबसाइट बनाएं जिसका जो हमारे अब आपको लिंक्डइन पे यूआरएल अपने नाम के साथ बनाने की भी इजाजत है आप वो भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं सो इट्स बेसिकली an introduction to the global world of who you are what can you do or what have you been doing as a student it's your story platform basically linkedin की beauty है कि it's your storyboard it's your
your own dashboard. So LinkedIn को आप इस्तेमाल multiple people, पाकिस्तान में नहीं, across the globe, क्योंकि ये global जो है वो platform है. तो इसमें आपकी effort ये होनी चाहिए कि आप सब तरह के लोगों के साथ अपना work showcase करें. You never know, since this pandemic has provided the whole world an opportunity to become virtual. So there is more flexibility now around the globe to take people on board from different regions. So you can be sitting here in Pakistan, working for an organization based in anywhere in the world. So LinkedIn can provide you that sort of opportunity. It has a magic to it. We are going to explore today what are the ways in which we can use this particular magic wand to our own advantage and use. So inshallah by the end of this particular workshop बहुत सी चीजें आपको clear हो जाएंगी, बहुत सी चीजों के बारे में आप मुझे अच्छा सा input दे रहे होंगे. So it's going to be a two-way learning process. So before I actually start my presentation, I have this particular small activity. I request all of you to go to menti.com. Here it is mentioned, and this is the code it is going to ask you. Okay, I'll share the link in the chat as well. I'm going to share. So whatever device you're using, please log on to menti.com. It will ask you, आपसे एक पूछेगा, कोई कोड मांगेगा. ये कोड है please 7016556. इसको enter करें and try to give your understanding of why do you want to make a LinkedIn account? What can make your LinkedIn profile stand out? अगर आपने कोई already एक basic सा LinkedIn account बनाया हुआ है, so what in your opinion can make your LinkedIn account stand out? There are no right and wrong answers. तो please ये परेशान ना होइएगा कि अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो वो किसी भी तरह से पता नहीं सही लगेगा या नहीं. कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है यहाँ पे. हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें लिंक्डइन के बारे में क्या पता है और हम लिंक्डइन पे जो अकाउंट बनाना चाहते हैं हम कैसे उसको इम्प्रेसिव करेंगे. सो आपकी अपनी ओपिनियन क्या है कि आपका लिंक्डइन अकाउंट कैसे स्टैंड आउट कर सकता है. जस्ट इमेजिन अगर जून जुलाई में भी आप ग्रेजुएट कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में, या जब भी आप करने वाले हैं. सो जून जुलाई पाकिस्तान में ग्रेजुएशन टाइम होता है सारी यूनिवर्सिटीज का. सो अगर आप एमबीए कर रहे हैं या बैकलॉरिएट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान के अंदर ही कितने 1000 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम सेम डिग्री सेम जीपीएस के साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे होंगे. They all will have wonderful skills. They all will have 3.7, most of them will have 3.75 and above GPA, right? So जो market है competition की, job में enter होने की, लोगों को अपनी skills के बारे में information disseminate करने की, वो बहुत competitive हो गई है. और especially this pandemic के साथ, everyone is looking for students or young people with a lot of energy, with a lot of flexibility, with a lot of skills. That is why LinkedIn के ऊपर आपकी right information का होना जरूरी है. So I'm hoping everybody has, all of you have seen, at least visited this, try to open up menti.com, menti.com. इसको आप visit करें अपने browser के through, और उसमें उसके बाद आपसे कोड मांगेगा 7016556. ये कोड है, प्लीज इसको एंटर करिए and you will see the screen flashing in front of you. So please start writing on it. कोई भी आपके दिमाग में आपको लगता है कि आपका जो LinkedIn profile है, how will you stand out in that? Please do that. You can't hear me? Okay. पता नहीं बेटे, मेरी साइड से तो ये मेरी माइक चल रही है. मेरा स्पीकर का सेटिंग बिल्कुल ठीक है. आप अगर आप सेल फोन से हैं,
अगर आपने सेल फोन से ज्वाइन किया है तो प्लीज अपने माइक के ऊपर क्लिक करें। वो आपको कॉल ओवर इंटरनेट की ऑप्शन देगा, उसको क्लिक करें आप, अगर आपने सेल फोन से ज्वाइन किया है तो वो माइक के ऊपर क्लिक करें, कॉल ओवर इंटरनेट की ऑप्शन देगा, तभी आप एंटर हो सकेंगे ऑडियो वर्जन में। Once you have done that, please log on to menti.com. menti.com खोलिए अपने इस ब्राउजर पे और उसके ऊपर we do this activity. It's basically an effort for me to discuss with you or make you talk to yourself. Basically ये जहाँ आप यहाँ पे आंसर लिख रहे होंगे तो ये आप अपने साथ मोनोलॉग कर रहे हैं या अपने साथ डायलॉग कर रहे हैं कि मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट को क्यों बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट को किस तरह से इंश्योर करूं कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट नजर आए। यहाँ इतनी बड़े क्राउड से, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का क्राउड सेम टाइम के ऊपर ग्रेजुएट करने वाला है, उसमें किस तरह से मैं अपने लिए एक एज क्रिएट करूं बाय यूजिंग लिंक्डइन अकाउंट। सो वी आर हैविंग अ डायलॉग विद अस आवरसेल्व्स। ठीक है, तो लेट्स थिंक टुगेदर। कोई इसमें राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वो आपसे कोड मांग रहे हैं तो कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, 70165556। So what is your opinion? Start writing. Menti.com and then start writing after adding the code. All those who are joining us, thank you so much. Thank you for taking out time. Thank you for becoming part of this particular learning cycle that we have. And the circle, of course. I love the title circle, I mean the term circle. Zappos uses it and I like it. Oh, lovely. So we have our response, certificates, mention all your projects. Lovely. It will be fun at the end, trust me. Don't be scared to share your thoughts. All those who are joining us, thank you so much. I'm very, very glad that so many kids are so keen to know about it. It's such a lovely sign. An eye-catching headline, absolutely. True. Mention all your projects, absolutely. I think I'll, yeah, yeah. Anybody else, please don't be scared to write anything. I hope you are able to log on to menti.com and the code is 7016556. Please take part in it. It's going to be fun. The way this word cloud is going to work, it's beautiful. I always find it a wonderful sight to see so many people thinking together about the same thing from a very different perspective. So I absolutely love how this word cloud, puts people's thought in different colors, lovely layout. So we have, mashallah, 27 people, 27 brains looking at this particular slide probably. Those who have just joined us, could you please log on to, write in your browser, menti.com, MENTI. ये यहाँ पे शो हो रहा है, और जब आप इसको खोल लेंगे वेबसाइट को तो ये आपसे कोड मांगेगा, प्लीज ये एंटर करिए कोड 7016556.
I'm happy to see people logging in. MashaAllah, now 29 people, more probably will come. So all of you, welcome. All of you, please take part in this small activity that we are having. It's an ice-breaking activity to make us see what is it that we want to do in today's workshop. So it's just not me telling you something. I want to learn something from you in return too, because you are actually more energetic, more brainy than I am. So welcome to all of you. Identify, manage our professional. Okay. Lovely. 3 participants have so far given their responses. All of them correct, all of them apt. Those who have just joined us, please log on to menti.com and enter 7016556. Accolades, manage our professional accolades. Okay, great. Experiences, if any, absolutely true. So 4 people have written great responses. I think we can have more. Okay, right. Okay, Manahil, you can use the menti.com if that's possible. LinkedIn manage our professional identity, absolutely. If you can write it in on menti.com, it will flash it here, flash here, and that will make the whole cloud thing look more cute. Okay, right, great. Manage our accolades. Okay, nice. Right. Okay, fine. Hafsa. Okay, this is okay, fine. Hafsa Almas, you okay, fine. So you will write Hafsa Almas and your LinkedIn account will stand out. All right. Okay. Nice, active. Be active. Good bio. Yes. Experiences, if any. Uh, right. Right. Professional profile picture. Absolutely. Yes. True. Right. So we have 6 responses so far. We have so many, mashallah, say people. 7 responses. Education. Absolutely. Visual media. Okay. List your relevant skills. Yes, true. Mention all your projects. Absolutely. Certificates. Yes. All right. Any more idea? List your interests. Yes, that also helps a lot. Yes, true. So see how this word cloud is populating. Certificates इसलिए बोल्ड में नजर आ रहा है कि ज्यादा लोगों ने इसके बारे में वोट दिया है या रिस्पांस दिया है, तो इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको मिडल में नजर आ रहा है. ठीक है? So look how this whole thing looks beautiful. The more people give responses, the more populated it is going to grow. But I want you to take a minute, all of us who are joining and all who can look at this particular screen right now. क्या आपको ये different colors में different words लिखे हुए अच्छे लग रहे हैं? क्या उनकी जो जिस तरह से ये लेआउट बना हुआ है वर्ड क्लाउड का, ये क्या आपको कैची लग रहा है? क्या आपने इससे पहले
इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है? आर यू फाइंडिंग इट फन? आर यू फाइंडिंग इट लाइकेबल? ये क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी अपने आप से पूछने हैं, करने हैं. And I wish I could, unmute your mic and we could have, live conversation, but we have to go on because of the limitations of time. And if you have responses, you can, write them in the chat box. I can read them here. So आपने देखा कि जब हमने ये छोटी सी एक्टिविटी की है, हम स्टार्ट में सारे एप्रीहेंसिव थे. हमें समझ लगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी. When we are trying to use it, sometimes before we even give it a try, we take a lot of time to think, should we be using it? What if I fail? What if I don't write something interesting and there is a huge crowd watching that screen? What happens if somebody spots that I have written something which doesn't make a lot of effect or sense? So these are the things, these are the questions that we all ask each other. ठीक है, ये हमारे साथ होता रहता है. हम सब के साथ ये questions और thoughts आते हैं. The beauty is that right now you can look at, nobody can, ये इसमें मैं क्लिक करूं तो किसी का नाम नहीं आ रहा, किसने क्या लिखा है, ये anonymously ऐड हो रहा है. बट जो भी पहली दफा इसकी पिक्चर देखता है उसको ये क्यूट लगता है. जिस तरह से ये पॉपुलेट होता है, इसके लेआउट है, कलर्स हैं, दे आर आई कैची. सो यही आपके लिंक्डइन में होना चाहिए. इस तरह की वर्ड डॉक्यूमेंट तो नहीं होगी जिस तरह की ये वर्ड क्लाउड बनी हुई है. But basic purpose here है कि in order for you to stand out in a crowd that will have so many skills, all of us will be skilled humans in future. All of us will be knowledge workers in futures. So in order to stand out in the clouds, you need to start looking at yourself different, from a different angle, from a different perspective, in order to look as catchy and as impressive as this word, small word cloud is. We have more than, I think, amazing bio, educational details, all of them are correct. All of them are beautifully penned down. An eye-catching headline, professionals, किसी ने अपना नाम लिखा है, हफ्जा अलमास, अपने नाम के थ्रू वो अपने आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, definitely nothing wrong there. Visual media की aid लेंगे, हम अपनी picture, bio picture जो है, वो professional picture जो होती है, उसकी aid लेंगे to make it beautiful. Yes, absolutely. These are all good leads. Now, मगर मेरा पूरी एक्टिविटी कराने का जो मकसद है वो शायद आपको समझ आ गया है कि जिस तरह से ये वर्ड क्लाउड आपको एकदम देखने में और ये एक्टिविटी करने में अच्छी लग रही है, यू आर एंजॉयिंग बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, यू आर एंजॉयिंग, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, हाउ डज दिस वर्क, क्या मैं अपनी किसी प्रेजेंटेशन में यूज, यस एब्सोल्युटली. बट द पर्पस ऑफ मेकिंग लिंक्डइन प्रोफाइल इज टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड. And how do you stand out? By not lying about who you are, but by trying to portray yourself in very smart words, in very, very smart ways, which are different, which other people are not doing. And you are doing it because this is so smart and this is legit. Legit means legal hai aur usko karne. So this is basically the whole purpose of this activity. That just by doing something different, thinking differently, you can become part of a bigger audience, bigger picture in the global scenario. LinkedIn global footwork है, मतलब global platform है, so you will have global footprint once you make a LinkedIn profile. ठीक है, तो इससे ये इतना जरूरी है आपके लिए LinkedIn profile को बनाना. Now let me see if it lets me go on to the next slide. सिर्फ इशू ये होता है कि अगर सारे participants उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें तो कभी कभार वो स्लाइड को चलने नहीं देता. Let me see if I can move to the next slide. Okay. Let me just see if I can help there. Okay. Right. So the next slide is about, let's talk about the next slide now. The same menti.com, the same code. I think it's already flashing at your end, 7016556. So let's see any 3 skills that you want to showcase on your LinkedIn profile. LinkedIn profile में आपके पास क्या skills हैं जिनके बारे में आप बड़ा confidently boast कर सकते हैं. LinkedIn पे प्रोफाइल में अगर आप वो स्किल्स डालते हैं तो आप उनको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या आपसे कोई काम का एविडेंस मांगा जाए तो एडमिशन के टाइम पे आप बड़े आराम से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो व्हाट आर दोस स्किल्स दैट यू कैन
mention on your LinkedIn profile, which are absolutely true, that some things that you carry. Now, please remember skills, soft skills भी होती हैं और technical skills भी होती हैं, hard skills और soft skills. और हमें अपने LinkedIn पे दोनों का एक बैलेंस देना है ताकि लोगों को ये भी पता चले कि हम गुड ह्यूमन भी हैं, यानी हमारी सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, और हम टेक्निकली साउंड हैं, यानी हम एक्सपर्ट हैं कुछ कुछ एरियाज में. सो think of it. What are the 3 skills that you can count right now? I have no idea कि आप इस वक्त कौन सी ईयर में पढ़ रहे हैं, but no matter अगर आप freshman हैं या आप graduate करने वाले हैं एक साल में या 6 महीने 8 महीने, you must have picked up some skills in the university while studying so many different modules or taking part in so many events that happen at university, especially pre-corona time. वो जो कोरोना से पहले चल रहा था टाइम, उसमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी, इवेंट्स चल रहे थे, सोसाइटीज बहुत सारे लेक्चर्स करवाती हैं इवेंट्स का. तो आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज अटेंड की हैं जहां से आपने स्किल्स को बिल्डअप किया हो? क्या स्किल्स हैं? Now, this is a very important conversation you need to have with yourself. अगर आप LinkedIn account बनाना चाहते हैं, if you want to get more job opportunities by having a solid LinkedIn account, these are important skills that you need to think about. Yes, presentation skills, creative writing, sketching, good. Speaking skills, problem solving skills, and management skill, absolutely. Content writing, speaking skill, language proficiency, social media marketing, graphic designing, great. बहुत अच्छी स्किल्स है ग्राफिक डिजाइनिंग. आई डोंट नो कितने बच्चे इस वक्त कौन सी स्टेज पे हैं अपनी स्टडीज के, लेकिन लर्निंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग रिगार्डलेस ऑफ द मेजर एंड माइनर्स दैट यू आर गोइंग टू डू is very important in today's time. Creative writing skills, good communication, public skills, yes, absolutely. Writing skill, management skill, marketing, managing situations, presenting, okay. Emotional intelligence, learnable, yes, learnable. Sorry. Presentation, typing, researcher, absolutely. ये बात बड़ी अच्छी है, किसी बच्चे ने लिखी है रिसर्चिंग. बहुत सारी मार्केट में इस वक्त जो अपॉर्चुनिटीज है वो रिसर्च एनालिस्ट की हैं. यंग बच्चों के लिए जो बहुत बड़ी जॉब की एक स्लॉट है वो एज ए रिसर्च एनालिस्ट है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सब बच्चे, नो मैटर कौन सी भी फील्ड है आपकी, आप सब बच्चे जो हैं वो ट्राई करें कि आप अपना जो रिसर्च का एंगल है उसको इम्प्रूव करें, उसके इम्पोर्टेंस को देखें. कोर्सेरा और बहुत सी ऐसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी कई सारी कोर्सेज फ्री की हुई हैं इस वक्त. तो आपको वो उन वेबसाइट्स को चेक करना चाहिए. डॉक्यूमेंट एडिटिंग, book reviewer, sketching, communication, speaking skill, good. Content writing, leader, good, nice. I'm enjoying the comfort level that you have suddenly developed with this particular uh, um, software. I am very happy that all of you are thinking and taking part. That's the beauty of these beautiful Menti.com and Kahoot, these platforms, that they engage the audience in a very different way. So इसलिए ये बड़ा जरूरी है. First, problem solving, active listening. अच्छा, first aid, sorry, मुझे पढ़ने में time लगा. Artistic skills, video production skills, animation technique, absolutely nice. So all those who are joining us, thank you so much for your interest in taking up this particular workshop. We already have started this activity, and we are just browsing ideas to see कि हमें LinkedIn से क्या फायदा हो सकता है, हमें क्यों चाहिए LinkedIn पे account. So we're just browsing the ideas. So creative writing, researching, speaking skill, writing skill, problem solving skill, very nice. We have 14 responses so far, and we have more than 30 participants right now probably watching me or joining us from different devices. So welcome to all of you. I'm thankful for the interest that you have shown, the energy that I'm seeing, very apt responses. So I'm very, very happy that all of you have your thinking caps on and you're very much there to learn कि आज हम कैसे इसको करने वाले हैं. Right. If there are no more responses, then I will move forward. Thank you for taking part in this particular activity.
It actually is an icebreaker for me and for you as well. So इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह का जो ऑडियंस है वो किस तरह सोच रही है और हम किस तरह से जो नई चीजें हैं इस इवेंट में उसके बारे में बात कर सकते हैं. So this is where I come, and this is where we are going to. I'm using LinkedIn for LinkedIn. This is the concept I'm going to teach you today. I hope आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाए. ये एक सेशन इनफ नहीं है. Let me tell you, ये बहुत बड़ी दुनिया है LinkedIn की. ये प्रोफाइल बनाने के लिए जो इस प्रोफाइल लिंक्डइन में कई सारे सेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर बड़ी सारी डिटेल ओरिएंटेड चीजें हैं जो हमें बिल्डअप करनी होती है. बट आई ट्राई टू गिव यू as much information as I can today so that at least you start populating your LinkedIn profile, ताकि आप उसके बारे में जो जरूरी चीजें हैं वो एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, ताकि आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इनफ दे दूंगी जिससे आप एटलीस्ट लिंक इन वाली पोजीशन में आ जाएंगे लिंक्ड इन से. ठीक है, तो this is a pun on the words that I'm going to use. Okay, that's my profile. I'm very thankful to Circle team for giving such an introduction and a great introduction in the beginnings, but a lot of people have joined us late. So for them, this is who I am. I've worked in HR industry. I've studied from UK and I've stayed in UK and worked in UK HR scene for a very long time. और इसलिए मेरी कई सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ से पिक की हैं यूके में रह के एज ए स्टूडेंट देन एज ए प्रोफेशनल, जिसने मुझे रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं उनमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में बात होना ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है. और एक लिंक्डइन प्रोफाइल है और बहुत सी और एवेन्यूज़ हैं सॉफ्ट स्किल के जो बच्चों में बिल्डअप करना ज़रूरी है. So and I play golf. Of course, बड़ा अजीब लगता है लोगों को ये देख के कि हिजाब भी करती हैं, ये हेड कवर करती हैं और स्विमिंग करती हैं और गोल्फिंग करती हैं. But this is who I am with all my contradictions. This is I'm a huge fan of the recent books I have read in lockdown. I'm thankful to this lockdown. Work from home opportunity. Lean in. मैं आप सब बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगी. Lean in by Sheryl Sandberg and Becoming by Michelle Obama. मैं Becoming आजकल पढ़ रही हूँ. ये बहुत अच्छी बुक्स हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स या जितने भी बच्चे हैं जो लीडरशिप स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे अभी पीछे इन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए. ये सब बातें क्या हैं, ये इतनी बड़ी खवातीन है और ये किस तरह से इनका भी जो सारा स्ट्रगल था अपनी जर्नी का वो कैसा खूबसूरती से उन्होंने लिखा हुआ है. दीज आर ग्रेट थिंग्स फॉर यू टू सी. You can follow me on actually Twitter. My Twitter handle is Pfizer32. These are my spelling different ones. These are here. So you can follow me on Twitter and you can follow me on LinkedIn. I post a lot of useful material for youth. So I hope कि आपका कुछ मेरे साथ connection से आपको थोड़ा सा help हो जाएगा चीजें समझने में. Now this is an important thing. On one side there are words and on other side there is an image. If I was there sitting having this live with you in a physical presence as in a classroom or any auditorium, I would take a vote. Picture से क्या समझ आ रहा है और word से क्या समझ आ रहा है, I would take a vote from the audience right now. ठीक है, और मैंने वोटिंग करा के आपसे सिर्फ एक आपको सोचने के लिए देना है कि ये मैं आपसे वोटिंग क्यों करा रही हूँ. Look at the picture that I have posted and look at the content which is written right in front besides it. किस चीज का इफेक्ट आपको ज्यादा आ रहा है, कौन सी चीज ज्यादा प्रोमिनेंट है. इस स्लाइड में वर्ड्स भी हैं और पिक्चर भी है. किस चीज की तरफ आपका रुझान ज्यादा जा रहा है या what is more eye catching. What I'm trying to ask is, if you look at, have one glance at this particular slide that is flashing in front of you, what is making more impact on your brain right now? Is it the picture or the words? So if you have to choose one thing, you can write your responses in the chat bar. I can read. The picture is more impactful. Picture, absolutely great. The picture, yes, great. So the message, what is the message? What am I trying to, do by doing it? Okay, don't scribble on the screen. I can use remote controls here. I don't want to do that. Let's have a learning environment.
Okay, so picture is more impactful. The picture is giving us more than the words on the right here. I've done it intentionally. Okay, बिल्कुल इस पिक्चर को देखें, एक बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पांस लिखा है, कलरफुल डिफरेंट आर थिंग्स आर मोर कैची, नरिशिंग द ब्रेन ऑफ ए चाइल्ड, एब्सोल्युटली। चाइल्ड इसलिए कि हम सारे, चाहे मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इसके बावजूद मेरे अंदर का चाइल्ड मेरे साथ हमेशा रहेगा और मेरे साथ ही जाएगा, ठीक है। सो हमारा अंदर का चाइल्ड हमेशा रहने वाला है। सो आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ये पिंटरेस्ट से मैंने बोरो की है। जब भी मैं इस पिक्चर को देखती हूँ, जिन्होंने भी बनाई है, ग्रेट उनकी थॉट्स थी। आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट पर्सन। सो आई डोंट ओन दिस पिक्चर, कॉपीराइट है इनके। आई बोरोड इट फ्रॉम पिंटरेस्ट, समबडी एल्स हैज डिजाइन्ड इट। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें जो आज की हम वर्कशॉप करने वाले हैं उसकी फिलॉसफी आपको नजर आ रही है? ये जो हैंड ऊपर से वाटर कर रहा है, ठीक है, उसके ब्रेन को, और कितनी फ्लावर स्टेम कर रहे हैं, बटरफ्लाई यहाँ है, हार्ट्स हैं, बच्चे की शक्ल पे देखिए कितने कलरफुल उन्होंने वो पत्ते और वो सब बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट लिंक्डइन एक्चुअली इज गोइंग टू for you. That particular one account, if you put it up in a very smart way, is going to do this job for you for the rest of your life. So this is the message I wanted to give you from this picture. कि LinkedIn account की इतनी importance है इस वक्त, especially in uncertain times के अंदर, जब हम लोगों के offices को visit नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना है और बहुत सारी जगहों पे वो activities बंद है, तो virtual होगी ये सारी दुनिया। इस वर्चुअल दुनिया के अंदर आपका लिंक्डइन अकाउंट, आपका वेबसाइट है, आपका प्लेटफॉर्म है, उसका एक्यूरेट और इंटरेस्टिंग होना इस वक्त बहुत जरूरी है। सो द मैसेज फ्रॉम दिस पिक्चर इज, आई थिंक, वेरी वेरी पॉइग्नेंट, वेरी वेरी सटल, वेरी वेरी रेलिवेंट, कि हमने अपने लिंक्डइन अकाउंट को करना। और ये जो हाथ जिसमें से पानी बह रहा है, ये हमारा अपना वजूद है। ये जो भी आप सीख रहे हैं आजकल और आगे इंशाल्लाह सीखते रहेंगे सारी जिंदगी डिफरेंट चीजों के थ्रू, ये हमेशा आपके लिंक्डइन अकाउंट में ऐड होती जाएंगी। सो आपके लिंक्डइन अकाउंट में आपकी स्किल्स की जो कैटेगरी अब है, और आज से 10 साल बाद जब आप अपने लिंक्डइन अकाउंट के ऊपर बात करेंगे, वो बहुत फर्क होगी। सो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वंस यू मेक इट, बिल्कुल खेत की तरह जिसको हर वक्त पानी और लाइट की जरूरत होती है, आपके लिंक्डइन अकाउंट में यू हैव टू रीविजिट योर लिंक्डइन अकाउंट एवरी नाउ एंड देन टू अपडेट इट। इसका अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको एक दफा बनाएंगे और उसके बाद इसको विजिट नहीं करेंगे या इसके इसके थ्रू चीजें नहीं करेंगे, तो फिर वो जो फायदा होने वाला है आपको फ्यूचर में, वो नहीं होगा। सो इट विल रिक्वायर अमाउंट टाइम फ्रॉम योर साइड, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टा एंड मेनी अदर पेजेस दैट यू विल बी रनिंग। ठीक है, तो इसमें जो बात करने का तरीका है लिंक्डइन पे, या चीजों को शोकेस करने का तरीका है, वो थोड़ा सा फर्क है उन प्लेटफॉर्म से। Everybody is on Insta nowadays, but LinkedIn is a slightly different. And then Twitter पे I would advise you to make your accounts. अगर आप प्रोफेशनल दुनिया में का पार्ट बनना चाहते हैं, तो LinkedIn और Twitter के ऊपर आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ट्विटर पे यू बी अमेज्ड कि ट्विटर के ऊपर दुनिया जहान की रिसर्चेज आती हैं। Everyone wants to showcase his work on Twitter. कोई एकेडमिक रिसर्च है, कोई नॉन एकेडमिक रिसर्च है, वो सब दुनिया ट्विटर पे बैठी हुई है और वो वहां पे अपना चीजें अपलोड कर रहे हैं। सो अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लिंक्डइन के ऊपर बहुत रिसर्चेज मिलेंगी आपको, आपको ट्विटर के ऊपर बहुत रिसर्चेज मिलेंगी, एंड यू विल फाइंड, आपने कभी बहुत सारे ओकेजन्स पे देखा होगा कि एक ट्वीट की वजह से कितनी ज्यादा चीजें जो है ट्रेंड सेटिंग में चली जाती हैं। ठीक है, तो एक स्मॉल ट्वीट, अ नॉर्मल ट्वीट कैन डू दिस। तो बच्चों को पाकिस्तान में ट्विटर की इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल दुनिया में आपके इन टच रहने के लिए ट्विटर इस्तेमाल करें। अब व्हाई डू दीज थिंग्स, अब हम थोड़ा लिंक्डइन की बात करके फिर मैं आपके साथ बात दूसरी कर लेती हूँ। आज की वर्कशॉप में हम कवर करने वाले हैं वाई लिंक्डइन। मैंने उसके बारे में काफी ऑलरेडी बातें कर ली हैं। देयर आर डिफरेंट सेक्शन ऑन लिंक्डइन। द इम्पोर्टेंस ऑफ अबाउट मी सेक्शन, ये सबसे जरूरी है। हाउ टू फिल वर्क एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ये वाला सेक्शन कैसे फिल करें, या हम इसके बारे में क्या अच्छी सी बातें लिखें इसमें। आई विल शो यू कि आपने वो भी कैसे करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिमोनियल्स मैंने लिखा है, लिंक्डइन पे इसको रिकमेंडेशंस बोलते हैं। तो टेस्टिमोनियल या रिकमेंडेशंस ये बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सो हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिनके रिकमेंडेशंस आप लें या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप उनके बारे में सोच सकते हैं। When to add, where to add contact details,
और ग्रुप्स लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कैसे करते हैं, लिंक्डइन से जॉब निकलवाने का जो तरीका है या जॉब मार्केट में लॉन्च होने का तरीका, वो भी आज हम थोड़ा सा ब्राउज करेंगे. एंड देन आई नीड टू टेल यू अगेन कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है लिंक्डइन की. इसका ओके, मैंने सारी स्लाइड्स में LI लिखा हुआ है विच मीन्स लिंक्डइन. सो मैं बार बार अगर लिंक्डइन ना बोलूं और LI बोलूं तो भी आप समझ आइएगा कि मैं लिंक्डइन की बात कर रही हूँ. Here is a video. Let me see if it works. I'm going to show it to you. The video is talking about the importance of why use LinkedIn. क्यों LinkedIn students के लिए या जो भी experienced लोग हैं उनके लिए जरूरी है. इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी ideas मिलेंगे. Let me see if I can play it. Sorry, the internet is a little slow at my end, so I need to. So I hope you enjoyed this particular video. I hope the message is very clear to all of you. Then why should we have a LinkedIn account? It is from your campus to career mode that will be helpful. This is the transition. It is helpful in the transition from campus to career mode. If there are any questions so far, I'll take them. If there are comments, yeah, okay. The video, you couldn't see the video? Oh, let me just try again. Let me just try again.
Okay, I hope that was audible. I hope that was clear, right? You guys, all right. If they were able to see it, okay. Can students write in the chat box if they were able to see the video? Was it visible to most of you? Can you please write in the chat box so that, I get to know that you all saw it? Right. Okay. So, yeah, thank you. All right. So most of you were able to see the video. That's great. I hope that video gave you a clear message that it is important for all of us to have a LinkedIn account from campus to career. It is a transition. It's a platform that's going to help you between the transition. So अब हम different LinkedIn के जो sections हैं उनकी तरफ आ जाते हैं कि हमारे लिए कौन से sections हैं जिनके बारे में हमने day one से बड़ा focus रखना है. Day one से हमने उनको अच्छे से set करना है. सबसे पहली चीज है आपका appropriate photo होना. नाउ लिंक्डइन पे फोटो जो है उसका जो क्राइटेरियन है वो फर्क है उन तमाम क्राइटेरियन से जो आपने देखे हुए हैं. ना आप अपना साइड पोज लेंगे, ना आप किसी फ्लैशी कार के सामने या किसी मॉल के अंदर या किसी रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह की पिक्चर्स को लिंक्डइन पे अपलोड करेंगे. इट हैज टू बी योर क्लियर हेड शॉट. और अगर आप लिंक्डइन पे देखें व्हाट इज द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ फोटो, अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको बड़ा क्लियर वो बताएगी कि किस तरह की फोटो आपने लिंक्डइन पे लगानी है. अगर आप वो फोटो नहीं लगाते, ठीक है, अगर आप इस तरह की फोटोज लगाते हैं जिसमें आपने अपना ये वाला साइड रखा हुआ है, जैसे हम खड़े होकर फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि प्लीज पिक्चर खींच दो, साइड पोज आ जाए, ऐसे ये वाली चीजें लिंक्डइन पे नहीं चलती. ये वाली प्लेटफॉर्म्स जो है ये बिल्कुल प्रोफेशनल सेटिंग के लिए हैं. इन पे इंस्टा या आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तस्वीरें नहीं चलेंगी. सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर पिक्चर, हेड शॉट जिसको बोलते हैं. मैं आपको उसकी एक तस्वीर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट डू वी मीन बाय हेड शॉट. लेट मी सी. I'll show you actual picture so that आपको उससे क्लियर आइडिया हो जाए कि लिंक्डइन पे किस तरह की तस्वीरें जो है वो एटलीस्ट लगानी चाहिए या प्रोफाइल पे किस तरह का वो इमेज होना चाहिए. आई थिंक द इजीएस्ट वन इज इफ आई शेयर माय ओन. ओके, okay, now this is my profile. All right, now this is what I mean by clear headshot. Okay, जो बैकग्राउंड है वो मिनिमल करना है आपने उसका, और जो आपका ऊपर है वो आपका इस तरह से होना चाहिए. फिर द सेकेंड पार्ट इज आपका पीछे से बैनर. जैसे फेसबुक के ऊपर बैनर्स की इजाजत है, ऐसा इस पे भी है. आप यहाँ पे पहले मैंने इससे पहले वाले में फ्यू डेज बैक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कवर लगाया हुआ था. If you cannot design one for yourself, that's fine. You can have a wonderful picture of your university जो अच्छी सही से पिक्सेलेटेड, वो जो जिसके पिक्सल ना पटे, अच्छी क्वालिटी की, आप उसको एज ए बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड व्हेन यू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशंस, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को फिर यहाँ पे अगर पोर्ट्रे करना चाहें, these are the first two things that are going to make any image in any recruiter's mind. हमें recruiter वर्ड इस्तेमाल करने वाली हूँ. By recruiter I mean organizations too and private recruiters जो दुनिया में LinkedIn पे आपके यहाँ पे अकाउंट में होंगे, दुनिया में यहाँ पे मौजूद हैं. अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है बड़ी जरूरी वो है उसके बाद आपका टाइटल होना. आपने अपने नेम को बड़ा क्लियर लिखना है. आपकी जो हेडिंग है नेम की वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड हो. ठीक है, स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए. जो आपका लेजिट पासपोर्ट पे या CNIC पे है वही होना चाहिए. फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कैची है, वो है आपकी हेडिंग. ठीक है, अब आप सारे स्टूडेंट्स होंगे तो आप यहाँ पे किस तरह की स्टूडेंट लगा सकते हैं, वो हेडिंग्स लगा सकते हैं. ये मेरी हेडिंग्स है जिस तरह से ये मैंने लिखा है. लेकिन जैसे आप स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट, about to be about to be finally graduating in 2020 2021, majors in, यहाँ पे जैसे ये स्लैश लिखा हुआ है, major in this, looking for open to opportunities, आप इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपकी जो हेडिंग है ये बहुत जरूरी है. जैसे आपकी
प्रोफाइल पिक्चर का बड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे जो आप अपनी हेडिंग के लिए, टाइटल के लिए इस्तेमाल करेंगे अल्फाज, उनका भी केयरफुल, कैची होना बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी लेट मी सी फॉर किसी स्टूडेंट का मेरे साथ है, तो मैं वो लेट मी जस्ट गूगल ओके, ये देखें, एक बच्चे का पिक्चर है, उसके नेम है और उसके साथ उनकी जो भी उन्होंने अभी तक किया हुआ है काम, उसका डिटेल्स है। दिस इज इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल दैट यू विल हैव, ठीक है। और नीचे स्किल्स का सेक्शन है, वो हम देखते हैं वो किस तरह से होगा, हम उसके बारे में भी इसके बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, ये बिगिनिंग है आपकी, ये इंट्रोडक्शन है टू द वर्ल्ड। सबसे पहले जो भी आपका गूगल करेगा नाम या कुछ, उसमें ये चीज पॉप अप करेगी। तो इस वाले सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस से आपने डेवलप करना है। इसमें एक्यूरेसी भी जरूरी है, इसमें आप डोंट लाई अबाउट एनीथिंग, इसमें एक्यूरेट होना बहुत जरूरी। आपकी जो लिंक्डइन पे आप ईमेल लगाएंगे या अपने सीवी पे आप ईमेल लगाते हैं, उसका प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड, मैं बार बार स्ट्रेस करती हूँ कि नो फनी ईमेल्स। बहुत सारे रिक्रूटर्स हैं, इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ एज अ रिक्रूटर, आई एब्सोल्युटली डोंट लुक एट एनीबडीज प्रोफाइल एज अ, जिसका भी जो ईमेल है वो बहुत फनी साउंड कर रहा हो। आई नो सो मेनी रिक्रूटर्स अक्रॉस द ग्लोब हु आल्सो डू द सेम थिंग। सो आपके नाम से रिलेटेड अगर आपका ईमेल बना हुआ है तो वो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, लोगों के लिए इजी होता है रीच आउट करना, नेम को एसोसिएट करना, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्री आता है और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ऑफ कोर्स, जैसे ये मुझे यहाँ पे देखें, जब मैंने अपना अकाउंट खोला तो यहाँ पे ही आपको वो कह रहा है कि एडिट योर पब्लिक एंड प्रोफाइल यूआरएल्स। तो यूआरएल ये चीज है जो यहाँ पे पॉप कर रही है, तो आप आपको ये अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी का यूआरएल बनाएं। बेहतर है कि आपने अपने नाम के साथ बनाए, लोगों के लिए रीच आउट करना आपके लिए अपने सीवी में ईमेल के साथ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक देना आसान हो जाता है। सो यू कैन डू दैट। फिर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप ब्लॉग करते हैं, वी लॉग करते हैं, अगर आपने आपकी कोई ई बुक बनी हुई है, जैसे बहुत से बच्चे बेकिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो अगर आप किसी वेबसाइट पे मौजूद हैं, अपवर्क पे या फेसबुक पे कुछ भी बना है, वो अपना जो है यहाँ पे सेक्शन को बिल्डअप करें। जैसे ये मेरी अपनी वेबसाइट है, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो मैंने लिखा। तो आप अपना जो भी यहाँ पे मीडियम इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कोई इंस्टा पे बिजनेस चलाते हैं, तब आप वो इंस्टा का पेज यहाँ लिखिए। और आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपका ट्विटर अकाउंट होना प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए जरूरी है। और ट्विटर में आप जब बना लेंगे अकाउंट, तो उसमें आपने राइट एवेन्यूज को फॉलो करना है, राइट लोगों को, और कोशिश करें कि आप रिसर्च रिलेटेड, ह्यूमन रिलेटेड जो मटेरियल है उसको बहुत ज्यादा रीट्वीट करें। उसका फायदा ये होता है कि जो लिंक्डइन पे आपका रिक्रूटर देख रहा है, अगर वो आपके ट्विटर के अकाउंट को जाएगा, तो वो सिर्फ ये देखेगा कि ये बच्चा ट्विटर पे किन चीजों को फॉलो करता है, इसका एप्टीट्यूड क्या है। तो मैं एक बहुत चीज के ऊपर स्ट्रेस करती हूँ कि जो ये वाली दुनिया है, ये जो पिछले 15 साल गुजरे हैं और अगले जो 30 साल हैं, इनमें उन लोगों के लिए मार्केट है जो अपने एटीट्यूड के थ्रू बहुत ज्यादा चीजें प्रूव करेंगे। So attitude is becoming a new science to hire. A lot of recruiters across the globe, a lot of wealthy businessmen across the globe are looking to hire for attitude, and they will train you for skills later on. ये वॉरेन बफे और बहुत सारे और लोग हैं जिनकी आप सुन सकते हैं टेड टॉक्स के ऊपर, कि वो कहते हैं कि आवर फोकस इज ऑन हायरिंग पीपल और स्टूडेंट्स विद एटीट्यूड, ग्रेट एटीट्यूड, ठीक है, एंड देन वी कैन लेटर ऑन डेवलप देम फॉर द स्किल्स दे लैक इन। So ये skills जो है, attitude is becoming a new science. Attitude is everything. I cannot stress enough कि आपके ये जो जितने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हैं, इनमें आपका राइट चीजों को फॉलो करके एकेडमिक, स्टूडियस, रिसर्चर एंगल लोगों के लिए बहुत जरूरी है फॉलो करना, कि आप किस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, देख वो है। So this is how you're going to, you know, fit in this. And after that, once you're done, ये भी याद रखें कि आपने बहुत क्लीशेड अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। देखिए ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एंड इन्फॉर्मेटिव बट पंची प्रोफाइल हेडलाइन। मैंने आपको एक स्टूडेंट्स की दिखा दी है। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ आई कैन ब्राउज, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट स्टूडेंट्स सीकिंग मार्केटिंग position or engineer building game changing consumer products.
ये कैची वर्ड्स हैं, लेकिन आपने क्लीशेड वर्ड्स को अवॉइड करना है। क्लीशे वर्ड्स होते हैं बज़ वर्ड्स, जिस तरह के हार्ड वर्किंग प्लेयर या इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो दे हैव लॉस्ट देयर मीनिंग इन 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 दिस वर्ल्ड। इनका कोई अब मतलब नहीं है, लेम लगते हैं, लेम साउंड करते हैं। जैसे ये, हाँ, ये भी लिखा हुआ है जैसे डोंट बी अ कोड निंजा और एसईओ गुरु, इस तरह के लफ्ज मत इस्तेमाल करें। आई एम अ गुरु, हम में से कोई भी गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि हम सारे ही सारी जिंदगी लर्न करते रहते हैं। तो ये वर्ड्स जो है ना, दे हैव लॉस्ट देयर प्लेस इन इन सोसाइटी। सो इस तरह के स्ट्रेटेजिक, क्रिएटिव एंड रिस्पॉन्सिबल, इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये वर्ड्स क्या, इससे होएगा क्या। What is strategic? What is creative? And what is responsible? We all are. We all are strategic. We all are creative, and we all are responsibility or responsible human being. This is a given. ठीक है? अब हमने इनका अल्टरनेटिव ढूंढना है। कहना यही चीज है, but different अल्फाज हैं। And there are so many softwares in the world which are now helping paraphrasing. अगर आपकी अंग्रेजी खुद से अच्छी नहीं है, तो there are softwares in the world that can help you look at the same thing that you want to say in a very different way. So helping in paraphrasing. You can Grammarly को आप देख सकते हैं, Worldly है उसको देख सकते हैं. So there are many other things that can help you. तो ये जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो आपका सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाया है, जिसमें तस्वीर आती है और उस तरह की चीजें आती हैं, ये बहुत जरूरी है इम्प्रेसिव होना। ये पहला आपका इंप्रेशन है। प्लीज रिमेंबर ऑलवेज, चाहे अपना सीवी बना रहे हैं, चाहे अपना लिंक्डइन अकाउंट बना रहे हैं, nobody is looking at you. They will get introduced to you informally and formally through these mediums. ठीक है? So this is your first impression in anyone's account. They will have a look at your account, and it is going to be their first impression of you. And I'm sure in your life as well, when you visit different websites to buy things, कोई चीज कॉस्मेटिक या कुछ, so वो जिस तरह के रिव्यूज लोगों ने लिखे होते हैं उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, उस प्रोडक्ट के बारे में, जिस तरह की स्टार रेटिंग दी होती है, या जिस तरह से उसकी पिक्चर लगी हुई होती है, आप इन सब डिटेल्स को देख के फिर डिसाइड करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट बाय करनी है या नहीं करनी, राइट? So you have to be conscious कि मैं अपना LinkedIn account किस तरह से populate कर रही हूँ या कर रहा हूँ, and what are the things I need to avoid, what are the things that are going to make me look less suspicious in the way कि suspicious in the sense कि authentic sound करना है हमने। हमारी सारी effort ये है कि हमने LinkedIn account बनाना है ताकि लोग हमारे CV से उसको मैच करके जब हमारा LinkedIn प्रोफाइल देखें तो वहां से हमारी authenticity जो है वो क्लियर हो। LI summary, LinkedIn summary. This is where the magic begins. And this is actually, the picture is so true. जब भी कभी कोई आपका LinkedIn अकाउंट देखेगा तो सबसे पहले वो जो आपकी तस्वीर और कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बाद उसकी सबसे ज्यादा नजर पड़ने वाली है। Again, I've borrowed this picture from Pinterest, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, not, I didn't design it. So सबसे पहले जो आपकी इंप्रेशन पड़ेगी उसके ऊपर, वो आपकी पिक्चर, और उसके बाद आपका जो लिंक्डइन का अबाउट मी सेक्शन है या समरी सेक्शन है, वहां पे उसकी नजर जाएगी। वो क्यों पड़ेगा कोई भी रिक्रूटर आपका लिंक्डइन का सेशन? क्योंकि वो जो आपने अपनी सीवी भेजी होगी, वो उसको मैच करने की कोशिश करेगा आपकी समरी से, कि आपने समरी में क्या लिखा है अपने बारे में। तो समरी में जो चीज आपको हेल्प कर सकती है वो है, that's a small secret, that don't cut corners on the summary statement. This section is mainly for you to stand out. It colors in and adds a story element to your experience and your aspirations. तो इसकी जो टोन है सबसे पहले आपकी राइटिंग की, वो स्टोरी लाइक होनी चाहिए। यानी आपने थर्ड पर्सन में नहीं लिखना है इसको। जैसे अगर आपका नाम निदा है, निदा रऊफ है या कुछ भी है, तो आपने ये नहीं स्टार्ट करना, रिदा रऊफ इज मीडियम आर्टिस्ट, किसी भी मीडियम की आर्टिस्ट है, एंड शी इज करंटली स्टडिंग इन दिस एंड दिस। ऐसे नहीं करना। इसमें आपने आई से करना। यू हैव टू ओन अप योर सेल्फ। अपने आप को इज्जत देना है आपने इस जगह के ऊपर। सो दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू हैव अ मोनोलॉग विद योरसेल्फ। हाउ डू आई वांट पीपल टू परसीव मी? मेरा समरी सेक्शन पढ़ के वो मुझे क्यों हायर करे, या मुझे एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए क्यों आए? आपने ऐसे अपने आप से बात करनी है। ये चीजें जिनके आंसर आपने वहां समरी में लिखने हैं। सो बी कंसाइज अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशन एंड गोल्स, and if you can, write a compelling narrative weaved throughout. Describe what motivates you, what you have done and are skilled at, and what makes you unique. Do not use third person narrative. I've said it. Be clear and confident. Even if you really are not, only you has to know that.
कॉन्फिडेंट इन अबाउट व्हाट, कभी कभार हम कुछ चीजें लिख देते हैं, वो आपको पता होता है कि आपके अंदर है, लेकिन आपने कभी उनको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। सो डोंट लाई, लाई का यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं बोला जा रहा। जो आपने लिखना है वो ये है कि अपना अपना क्लोजर टू ट्रूथ इमेज यहाँ पे बिल्ड करना है। अब आई विल सी कि मैंने कोई आपके लिए यहाँ पे, हाँ, ये 3 सैंपल्स डिफरेंट लोगों के मैंने आपके लिए रखे हैं। ये देखिए, read through it please. I can't read them out, you have to read. This is another one. I borrowed these from internet, of course. आप देखिए इन दोनों में आपने ये नोटिस किया होगा कि ये बच्चे जिन्होंने एक्चुअल काम किया है, जिसके बारे में इनकी एक्सपर्टीज है, एज अ स्टूडेंट जो उन्होंने डेवलप किए हैं, वो उन्होंने अपने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, और दोनों जगहों पे अब आप ये देखें, ये जो बच्चा है, ये जो सेकंड वाली है जैसी सन, इन्होंने यहाँ पे देखिए अपनी समरी के अंदर जिन स्किल्स को बिल्डअप किया है अपने काम में उनको, और इसके अलावा ये यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड इन इन 2013 इन्होंने प्रोडक्ट क्रिएट किया, क्लाइंट्स रिसीव 60 मिलियन इन लोन फ्रॉम बैंक, जो भी उनकी ब्रांच थी। ये वो फैक्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी समरी में कोट करते हैं, लॉट ऑफ रिक्रूटर्स गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू दीज थिंग्स। इन टर्म्स ऑफ मनी आपने क्या फायदा किया उस प्रोजेक्ट के साथ जो आप अटैच थे, ये चीजें आपके लिए पिकअप करना जरूरी है। तो जब आप भी काम करेंगे, वॉलंटियर वर्क बहुत जरूरी है आपके लिए इस वक्त करना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअल वॉलंटियर वर्क दे रही हैं इस वक्त कोविड की वजह से। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वॉलंटियर वर्क करें और उससे सीखें कि मैं वॉलंटियर वर्क में सीख क्या रहा हूँ। एक तो होता है कि काम करना, ठीक है, सॉरी, काम कर लिया, उससे सीखा क्या है आपने? आपने जब भी आप कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपने उस प्रोजेक्ट को करने के बाद अपनी स्किल सेट बनाना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट से सीखा क्या है। तो दो चीजें जो आपने उस प्रोजेक्ट से सीखी, आपने उसको स्किल्स के फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये इस प्रोजेक्ट में लर्निंग ओरिएंटेड मेरे लिए क्या था, मैंने न्यू लर्निंग क्या ऐड की है। एक तो स्किल है और मेरी लर्निंग कैसे इंप्रूव हुई है, मैंने क्या नई चीज सीखी है, उसको देखें। वो आप अगर इस तरह से अपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो आप अपने मॉड्यूल को पास करने के लिए लिख रहे हैं, डिफरेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ करते हैं, अगर आप अपनी सारी वर्क को स्किल्स के सेट के अंदर डालना शुरू कर देंगे, कॉलम बना लें अपना, जो भी आप कर रहे हैं उसकी एक वो कॉलम बना लें। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, चाहे आप पेपर लेने वाले हैं, यानी एक सब्जेक्टिव पेपर फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ रीडिंग कर रहे हैं, आप उसके लिए कुछ असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है, इसमें अगर आपकी एनालिटिकल स्किल्स आपके काम की वजह से आपकी एकेडमिक स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, आप यहाँ पे उनके बारे में बात करें। आपने कोई सॉफ्टवेयर में काम करके डेटा
अपनी प्रेजेंटेशन के लिए या रिसर्च के लिए लिखा है, उस डेटा का नाम उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए यहाँ पे। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपकी समरी के अंदर बड़ी जबरदस्त साउंड करेंगी, बट दे हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, दे हैव टू बी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। यानी हम सबका इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप खड़े हैं, इंटरमीडिएट लेवल होता है हर स्किल का। बहुत कम हम अचीव कर पाते हैं मास्टरी लेवल। ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चे बहुत मास्टरी लेवल पे है, ये बड़ी अमेजिंग बात है। फिर तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आई हैव, कुछ बच्चे ये लिख सकते हैं मैं लिमिटेड एक्सपोजर टू दिस। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं, वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं अपने समरी के अंदर। तो आपने इसको बहुत ऑथेंटिक साउंड करवाना है। सो द होल डील दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, how authentic you sound in your summary, what skills you portray can become a deal breaker for you. ठीक है, तो ये सारी एफर्ट है। एक और भी सैंपल है, ये देखें, एक और सैंपल है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि जो तीनों बच्चों ने अपने समरी में ड्राफ्ट लिखा है, उनकी लैंग्वेज बहुत स्टोरी टेलिंग वाली है। ठीक है, अगर हम इनको नहीं जानते, मैं भी इनको नहीं जानती, लेकिन इनकी जो समरी पढ़ के वी कैन रिलेट कि उन्होंने क्या सीखा है, डिग्री किस में की है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इनका ईमेल क्या है। मेजॉरिटी ने देखें अपना सीवी भी अटैच किया हुआ है यहाँ पे, तो उसकी भी इजाजत होती है, आप अपना सीवी यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं। So they have made it very clear to the recruiter they are serious to look for new opportunities. They're seriously looking for new opportunity. Any third person, any stranger reading their summary can relate and make an educated guess of who they are, what are their interests, what type of work they have already done, what possible skill set they might carry. ठीक है, तो इस तरह से हमें बड़ा अच्छे से एक फोकस्ड उनका जो इम्प्रेशन है वो पड़ रहा है। सो ये चीजें आपने भी फॉलो करनी है। एनी क्वेश्चन सो फार? Sorry, Munaza, the video wasn't audible. It was visible but not audible. I don't know why wasn't it. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं उसका लिंक आपके यहाँ शेयर कर देती हूँ वीडियो का। ठीक है, आप अपने टाइम में अपने ओन टाइम पे इसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, so any questions so far on the things I've just flashed? 3 समरीज मैंने आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स की दिखाई हैं, उसमें आपको किस किस्म की वो नजर आई बातें, कौन सी हाइलाइट्स थी जो आपको समझ आई हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वंडरफुल, आई वुड लव टू फॉलो देम व्हेन आई एम गोइंग टू मेक माय ओन वीडियो, oh sorry, my own profile. Okay, please write your responses here. If there is any question, I can answer that. So far, any question? Okay, so I think it's very clear to everyone what they're supposed to do. I'm moving forward. Okay, ये summary section हो गया। अब आपका आता है एक्सपीरियंस सेक्शन, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस जनरली लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिल्डअप करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखा हुआ है, शो डोंट टेल। अब दिस माइट कम एज अ सरप्राइज फॉर यू एंड यू माइट बी थिंकिंग इन योर हेड कि हम कैसे शो करें और किस तरह से हम डोंट टेल वाली फिलॉसफी को फॉलो करें। It is not very difficult. If you come to think of it, all your study, student life, you have taken part in amazing functions, in events in the university. You have been part of, I'm sure you must have been part of so many shadowing opportunities. आपने बोला volunteer work किया होगा,
और आपके पास कुछ ना कुछ पिक्टोरियल एविडेंसेस होंगे। अब जैसे आप ये जूम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कैसे होगा शो और टेल? अगर आप इसी तरह के डिफरेंट और आई एम श्योर बड़े जबरदस्त आपके टॉपिक्स के ऊपर कराए जा रहे हैं, तो आप उनका क्या कर सकते हैं, आप उनकी पिक्चर्स लेके सेव कर सकते हैं और अपने अपने लिंक्डइन के ऊपर या ट्विटर के ऊपर उनकी पोस्ट बना सकते हैं और उन लोगों को टैग कर सकते हैं जो प्रेजेंटर्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है या वो जो सोसाइटी है जिसने अरेंज करवाया। यू कैन thank them for this. This is how you will start having pictorial evidence that what sort of projects have you been part of, what are the sort of things that you have learned. ठीक है, और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। आप इसमें आप ये कर सकते हैं कि अच्छा ये हो गया शो डोंट टेल। दूसरा, अगर आप कंटेंट राइटर्स हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, आप वीडियो बनाते हैं, वीडियोग्राफर्स हैं या आप रिसर्चर्स हैं, तो आपने डिफरेंट चीजों के ऊपर काम किया होगा। वन, डिफरेंट मीडियम्स पे काम किया होगा। टू, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अभी तक पार्टिसिपेशन कर ली होगी। थ्री, एकेडमिकली या नॉन एकेडमिकली आपने कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को शोकेस किया होगा। अब ये टाइम है कि आपने देखना है कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर प्रोफेशनली कौन सी चीजें साउंड कर रही हैं और किनका पार्ट होना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी इसकी एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि रियल वर्क सैंपल्स जो है वो किस तरह से हम दिखा सकते हैं। मैं अपना ही अकाउंट वापस ले जाती हूँ। लिंक्डइन में एक बहुत ही अमेजिंग, जैसे ये देखें, ये अबाउट मी, मेरा मेरा अबाउट मी है, यानी जो समरी की हम बात कर रहे थे, ये मेरी समरी है, ये फ्लैश हो रही है आपके सामने। इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने जो जितना मुझे मेरी मेमोरी थी डाइवर्सिटी से लेके अपने जितने काम थे वो मैंने लिखे हैं। साथ में मैंने अपने यूट्यूब और फलाने फलाने का जिक्र करके देखिए स्पेशलिटीज लिखी हैं। यानी मेरी जो स्किल्स हैं, इफ somebody wants to get in touch with me, तो उसको क्लियर पता चल जाएगा कि these are my skills जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ या जो मुझे पता है। सो उनके थ्रू, और ऊपर से अगर आप देखें तो मैंने अपने टाइटल में भी ये चीज लिखी हुई है, लेट्स टॉक अबाउट कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टडीज। So if anybody is looking at my title and the sort of work I've done, and then if anybody looks at this featured प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब इस फीचर्ड के अंदर आपका जो मैंने आपको शो डोंट टेल वाली बात की है, ये यहाँ पे आएगी। जो पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं, जो वीडियोस हैं, जो आपकी वेबसाइट्स हैं, जो आपकी जितना भी अमेजिंग काम आपने किया हुआ है, वो यहाँ पे फ्लैश करेगा। इसलिए मेरा बहुत बड़ा है, इसमें काफी सारी चीजें, so I'm just flashing. So this is where you will show and don't tell. यहाँ से आप ऊपर से पढ़ेंगे लोग आपका यहाँ से समरी, यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ कितना मैच करता है इनकी इंटरेस्ट, जितनी ये बात ऊपर करें, क्या ये इतनी लेजिट है, ये तरीका इनको आता है करने का या नहीं। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, और अपने प्रोफेशनल वर्क में, जैसे अब मेरा यहाँ पे चूंकि एक्सपर्टीज है और वो सारा है, तो मैंने वो सारा बुलेट पॉइंट्स में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है। और लेकिन आपका ये होगा कि अगर आपने कोई अभी तक ऐसा काम नहीं किया हुआ, यानी कि सॉरी, अगर आपने ऐसा वो इस तरह से प्रोफेशनल वर्क में नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ पे अपने वॉलंटियर वर्क को पोर्ट्रे करेंगे। फर्स्ट करें, आपने वॉलंटियर किया है किसी अखुवत के साथ, अखुवत एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपने उसके साथ वॉलंटियर किया था समर में, और आपने उनके लिए वो किया है, क्लोथिंग की ड्राइव की है, जो क्लोथ्स बच्चों के लिए होना होता है, तो वो आपने किया है। अगर आपके पास कोई पिक्टोरियल एविडेंस है कि आपने उनके साथ उनकी टीम को हैंड ओवर किए थे वो सब पैकेट बना के या कुछ, आप ऐसी चीजों के बारे में जिक्र कर सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस में। पिक्टोरियल एविडेंस फीचर्ड में लगाइए, नीचे उसके बारे में लिखें, वर्क विद द खुवत या जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है वहाँ अवेलेबल, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, जहाँ पे से भी आप देख रहे हैं, आप उन चीजों के बारे में लिखें। फिर उसके बाद आपने जो चीज बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मैं वैसे ही एक फ्लैश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपने आप इस वक्त कौन सी स्टेज ऑफ स्टडी में हैं। सो अगर आपने कोई भी किसी भी मॉड्यूल को पास करने के लिए कोई रिसर्च पेपर लिखा है, कोई आपने ऐसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी है, इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं, या आपने कोई बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड रिपोर्ट लिखी है किसी भी, आप उनको अपने एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं, पास दिस मॉड्यूल फॉर दिस थिंग, और मैं उसके बारे में लिखता हूँ। आपने उसमें लिखना क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स में आपने 2 से 3 चीजों को हाईलाइट करना होता है कि वो प्रोजेक्ट क्या चीज को एड्रेस कर रहा था, क्या आपका
सॉरी, क्या आपने उसके बारे में लिख के सोचा था, किस चीज के बारे में काम किया, उसकी फाइंडिंग क्या थी, किस ऑर्गेनाइजेशन को उससे आपने सैंपल लिया, इन तरह के 3-4 बुलेट पॉइंट्स बना के आप अपना जिक्र कर सकते हैं। फिर ये जितनी वर्कशॉप्स आप अटेंड कर रहे हैं आजकल वर्चुअल, ये आपके लिए बहुत जरूरी सैंपल्स हैं जिनको आप पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिनको आप फ्लैश कर सकते हैं वहां पे। अपने वर्ड्स को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको वर्ड्स को बहुत स्मार्टली चूज करें। ठीक है, इसकी एम्फेसिस मैंने पहले भी बताई है कि आपने जो 3 बच्चों का काम अभी समरी में देखा है, वो तीनों बड़ा स्मार्टली अपने बारे में सम अप कर रहे हैं। ठीक है? कट कॉपी पेस्ट लिंक्डइन पे पकड़ा जाता है, या अगर सीई में भी है तो पकड़ा जाता है, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो अब इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो आई विल एडवाइज यू कि अगर आप किसी की समरी पढ़ते हैं या किसी का वर्क एक्सपीरियंस आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरी मेरी तरह का है, मगर मेरे पास इतने खूबसूरत अल्फाज नहीं है जितने खूबसूरती से लिखा है, आप जरूर पढ़ें, जरूर इंस्पिरेशन लें। लेकिन आप, आई वुड एडवाइस कि आप उनको किसी सॉफ्टवेयर में डाल के पैराफ्रेज करके नए तरीके से सेम चीज को एड्रेस करें अपने प्रोफाइल में। डोंट डू कट कॉपी पेस्टिंग, दैट विल हर्ट योर यू इन द लॉन्गर रन। ठीक है? अगर आप ब्लॉग करते हैं, वी लॉग्स करते हैं, अगर आप पेपर्स लिखते हैं, अगर आप किसी भी किस्म के इंटरेस्टिंग क्रिएटिव मीडियम का पार्ट है, प्लीज टॉक अबाउट इट, डू मेंशन इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग कि मेरी हॉबीज क्या हैं। उसके भी नीचे बना हुआ इंटरेस्ट के नाम से, लिंक्डइन के नीचे अगर आप जाएंगे प्रोफाइल में, वहां पे एरियाज हैं, तो वो आपको देखते हैं कि आप किस तरह की, वो आपको बिल्कुल इजाजत दे रहे हैं अपने इंटरेस्ट की बात करने की। तो be visual and authentic, that is my message for experience session. शो डोंट टेल से मैंने स्टार्ट किया है आपको मैसेज देना, और अपने एक्सपीरियंस सेशन में मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बी विजुअल एंड ऑथेंटिक। I cannot stress enough on the importance of collecting all these pictorial evidences that you have done for all the things that you have been part of, especially all the events that you have done through university, जितनी societies के साथ आपने काम किया है। अगर आपने उनकी काम नहीं किया और उनके फंक्शंस अटेंड किए हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, गेस्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उनके एविडेंसेस देखिए कि कहाँ हैं, और आप उनके बारे में अपनी जो फीचर्ड सेक्शन है उसको पॉपुलेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी थॉट्स? अगर क्वेश्चन नहीं है, एनी कमेंट्स? ओके, okay. Now, a lot of argument that you will hear from a lot of your seniors, या बहुत से लोग, लिंक्डइन से नौकरी नहीं मिलती, मुझे तो नौकरी मिली है, फलां फलां बंदे ने मेरा जिक्र किया और फलां फलां जगह पे मैं गया तो वहां पे ऐसे बात हुई तो मेरी नौकरी। That is absolute true. 80% of the job openings are never advertised on any website. Companies have something, a mechanism which is known as internal recruiting. ठीक है? HR की दुनिया में इसको नाम बोला जाता है इंटरनल रिक्रूटिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अपने किसी मुझे पता है कि फलाने डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी अराइज हो रही है और उसमें टेम्पररी हायर चाहिए मुझे। ठीक है? 6 महीने, 6 वीक्स, 8 वीक का कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा चाहिए। सो मैं क्या करूंगी कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे डिफरेंट, मैं वहां पे उसको पोस्ट कर दूंगी। ठीक है? लेकिन मेरी ना वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे आपको नजर आ रहा है वो, ना ही लिंक्डइन पे मैंने डाला है अभी तक एज ए रिक्रूटर। सो वो जो व्हाट्सएप पे मेरे लोग होंगे, वो ढेर सारे लोगों के प्रोफाइल्स मुझे सेंड करने लग जाएंगे। दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फिल्ड आउट नाउअडेज। ये ज्यादा फास्टर तरीका हो गया। अब ऐसे एनवायरनमेंट में जिसमें इस तरह से काम हो रहा है, हाउ विल यू यूज योर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म to make sure that you reach out to a lot of recruiters on which are present on LinkedIn, and also companies who are looking for such people who have relevant skills for their uh, task. अच्छा, ओके, स्किल्स का भी एक सेक्शन जो मैंने आपको बताया कि वहां पे स्किल्स का सेक्शन है, वो भी आपने देखने लगना है कि आपने कैसे पॉपुलेट करना है। सो इफ यू डोंट हैव लिंक्डइन अकाउंट, फर्स्ट थिंग, make a LinkedIn account today or over this weekend. If you already have made it, go back to it, see कि आपने कौन से सेक्शंस अभी पॉपुलेट होने वाले हैं, उनके बारे में बात करें। 3, अगर आपको किसी का सैंपल और नजर नहीं आ रहा लिंक्डइन में, तो आप प्लीज मेरे ही लिंक्डइन अकाउंट पे जाके मुझे वहां से बेंच मार्क कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से कि कॉपी करें, बेंच मार्क करें कि ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और ये मेरे आइडियाज हैं, ये डिफरेंट आइडियाज हैं डिफरेंट लोगों के, तो मैं उनको किस तरह से देखूं कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल। नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग का क्या तरीका है कि सबसे पहले, वीडियो में भी वो बोल रहे हैं कि जब आप अकाउंट बनाए तो सबसे पहले अपने प्रोफेसर और अपने यूनिवर्सिटी के अलमनाई
अपने फैमिली फ्रेंड्स, आपके कई कजन्स कई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, आपके फैमिली में बहुत से लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे डिफरेंट, ऐड देम इन योर लिंक्डइन। सबसे पहला नेटवर्क तो आपका ये है क्लोजर। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा आपको लिंक्डइन भी सजेशन देता रहता है कि यू हैव सो मेनी म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो मे बी दिस पर्सन कैन बी एडेड टू योर कनेक्शंस। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपना बिल्डअप करते हैं। पहले तो कनेक्शंस बिल्डअप करते हैं। सेकंड, उन कनेक्शंस के साथ आपने क्या करना है, ये डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। तो आपने अपनी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड ग्रुप्स को स्कैन करना है, सर्च करना है लिंक्डइन के ऊपर, उनको ज्वाइन करना है। वहां पे बहुत सारे अंग्रेज और बहुत सारी दुनिया से लोग डिफरेंट रिसर्चेस को, डिफरेंट पोस्ट को पोस्ट कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरी दुनिया में, एचआर की दुनिया में डेव उल्रिक है, एक बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह डेविड ग्रीन है, इसी तरह बर्नार्ड मार है मेरी जो एचआर और सो मैं बहुत रेगुलरली उनकी पोस्ट को ट्विटर के ऊपर फॉलो करती हूँ, पढ़ती हूँ, शेयर करती हूँ और अपने पोस्ट पे। और कभी अगर मुझे इंटेलिजेंट कमेंट करना आता हो उनके ऊपर तो मैं एक इंटेलिजेंट कमेंट भी करती हूँ। दिस इज हाउ पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट योर प्रोफाइल when you make intelligent comments on people. Sometimes you even like people's post. People say, who is this person? I don't know, ye kisne like kiya hai? So they will go and check your profile. The important thing is to start having traffic to your profile, and you can gather that traffic by making all these small efforts. Join the right groups relevant to the fields that you want to be part of. Start making comments on different posts that you see on LinkedIn. Start sharing them on your, अगर आप किसी की job advertise हुए हुए देखते हैं, तो start sharing that job on your LinkedIn profile too. It will help. Okay? ठीक है। सो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी स्मॉल सी एफर्ट लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसका अपना लिंक्डइन का जो अकाउंट है उसको यूजफुल बनाएं। आई जस्ट हैव टू टर्न माय वीडियो ऑफ फॉर अ मिनट। माय लैपटॉप्स बैटरी हैज गॉन डाउन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sorry, it's fixed now. Right. So this is what you have to do for your LinkedIn कि आप वहां पे लोगों की different posts को like करें, उनके ऊपर contribution करें. If you don't have anything intelligent to say, it's absolutely fine. Just like their post, at least read it. ठीक है? And sometimes when you have something intelligent to contribute, do talk about it. Then this is how you start getting noticed. ये बहुत जरूरी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, आई कैन टेल यू कि मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात आगे दिखाऊंगी फ्लैश। I myself am an example. I have found my freelance work through the recommendations people have given me on LinkedIn. मेरे प्रोफाइल से भी नहीं, मेरी जो LinkedIn पे recommendations हैं, उनसे मुझे कई freelance काम मिला है within UK and पाकिस्तान, ठीक है? And secondly, मेरा जितने भी मतलब मेरा LinkedIn profile रोज कोई ना कोई visit कर रहा होता है. So I get a lot of traffic to my LinkedIn profile. और उससे मुझे क्या फायदा होता है, वो ये होता है कि अगर आप मुझे गूगल करेंगे फायजा तस्नीम एसोसिएट CIPD, तो क्योंकि आई एम क्वाइट वेल रिसर्च्ड पर्सन, तो मेरा जब गूगल के ऊपर भी कोई इंडिपेंडेंट इंसान मुझे रिसर्च करता है तो गूगल की रेटिंग्स में फर्स्ट 3 में कहीं ना कहीं मेरा नाम आ जाता है. This is what you also start needing. You need to now become a brand. You need to start branding yourself. ठीक है? इट डजेंट मैटर आपकी कौन सी बैकग्राउंड है पीछे से, आप अंग्रेजी में मास्टर्स कर रहे हैं या आप अभी कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी मेजर में है, मुझे उससे नहीं है. ये सबके लिए वैल्यूएबल है, ये सबके लिए वैलिड कमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ. सो यू नीड टू स्टार्ट वन एडिंग पीपल फ्रॉम योर सर्कल फर्स्ट, ठीक है? टू स्टार्ट कनेक्टिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स. बहुत से लर्निंग ग्रुप्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, कनेक्ट विद देम.
बहुत से रिक्रूटर्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं पाकिस्तान में, जॉब्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं लिंक्डइन के ऊपर। रोजी के अलावा बहुत सारे लिंक्डइन के ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करें। वहां पे डिफरेंट जॉब्स लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी की वेबसाइट पे एडवर्टाइज हो, वो अक्सर लिंक्डइन के ग्रुप्स के अंदर भी लोगों ने भेजा होता है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किसको करना है। फिर जब आप किसी जॉब को देखें तो पहले उस कंपनी को गूगल जरूर करें, उस कंपनी के बारे में जानें। क्या बहुत सी कंपनीज हैं जो बहुत सारी जॉब्स हैं जो स्मॉल सेक्टर में आती हैं, एसएमईज में आती हैं। So you have to decide for yourself, is that the sort of thing that you want to do? So do visit their website. Every company, small and large, now have some sort of website. तो वहां जाके थोड़ा सा उनके environment के बारे में पहले स्टडी कर लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो. So networking on LinkedIn this is how you will open up more possibilities for yourself in a very professional way. और आपको वहां पे बहुत आसानी होगी अगर आप इस तरह से LinkedIn को स्मार्टली इस्तेमाल करें. टेस्टिमोनियल्स या रिकमेंडेशंस ऑन लिंक्डइन, ये देखें जो पिक्चर मैंने आपको ऊपर फ्लैश की हुई है, ये इटसेल्फ बहुत सारा मैसेज आपको क्लियरली दे रही है कि these are small rays that are coming, ठीक है, these rays are important on your LinkedIn. ये जो रेज आ रही हैं लोगों की, let people talk for you. Okay, this is the message from LinkedIn. Let people talk for you. Recruiters and professionals will look at your profile and will notice what sort of people have commented on your work. ठीक है, तो कौन से लोग हो सकते हैं, ये मैंने 2 सैंपल लगाए हुए. ये तो ऐसे ही एक क्या कह लीजिए कि किसी कोचिंग के इंसान के बारे में थे, लेकिन आप अपने किन लोगों से रिकमेंडेशन मांग सकते हैं. लिंक्डइन में इजाजत है कि आप वहां पे लोगों को प्राइवेट मैसेज करके रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. आई विल एडवाइज के स्टार्ट विद योर प्रोफेसर्स इफ यू फाइंड देम इजी टू अप्रोच, या आपने उनके साथ अगर टीए के तौर पे काम किया है या कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं ऐसे, तो एंड देन अगेन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु विद whom you have had the experience, या जो आपकी स्किल्स के बारे में अच्छे से सॉलिड बिल लिख सकते हैं. अब आप ये 2 सैंपल्स पढ़ें, सिर्फ ये सैंपल्स मैंने लैंग्वेज के लिए लिखे हैं. ये 2 देखें, ये किस तरह से इन्होंने कृषि के बारे में लिखा हुआ है. ये खातून है जो कोच है, सो रीड दैट. फिर उसके बाद मैं आपकी चैटिंग पढ़ती हूँ, चैट में जो कमेंट्स आ रहे हैं. रीड दीज 2 recommendations. Let people advocate for you. Let people speak about your skills rather than you saying कि मुझे ये भी करना आता है, ये भी करना आता है, ये भी करना आता है. And then again, don't ask them to lie. सारा मकसद ही फौत हो जाएगा अगर आपने झूठे इन्फ्लेटेड रिकमेंडेशंस लोगों से लिखवाए हैं, वो फौरन पकड़े जाते हैं. ओहो, सॉरी. Please read the language these 2 people have shown to write recommendation about the same person. They both had different experience with her. So just read the language. जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की रिकमेंडेशन की लैंग्वेज होनी चाहिए. This, by the way, you can also write a recommendation for me on LinkedIn. I'm just saying it. So I hope that this message is very clear. कि आपने रिकमेंडेशन जब लोगों से लेनी है तो उन्होंने दे नीड टू एंडोर्स यू ऑन द कॉन्क्रीट थिंग्स दैट दे कैन सी इन यू. हार्ड वर्किंग है, ये है, वो है, इस तरह वाले अल्फाज का आप जिक्र कम करना चाहिए. ठीक है, लोग फिर भी लिख देते हैं, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के अल्फाज में लिखें जो कि ऑथेंटिक हो, न्यू हो, जो साउंड रियल करें. अगर कोई आपके बारे में हार्ड वर्किंग लिखता है, दैट इज फाइन. I agree कि we are all hardworking, so this is one aspect of us that we need to enjoy and celebrate. Absolutely. But उसके साथ जो नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल होने चाहिए वो जरा और तरह के होने चाहिए. अगर हार्ड वर्किंग लिख भी दी है तो यस, उसके बाद और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें खूबसूरत तरीके से हमारे बारे में बात कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट वो कौन से अल्फाज हैं जो झूठ भी ना हमारे बारे में बोल रहे हो और हमारी स्किल को भी हाईलाइट कर रहे हो.
ठीक है. एंड देयर कैन बी सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो साइड हसल करते हैं, मतलब जिनका साइड में कोई बिजनेस है या इनिशिएटिव है. If you have helped them in any way to do a project or do an event or do something, they can also write recommendations for you. So anybody who knows you and who with whom you have worked, volunteer work किया, वहां पे भी लोग आपको recommendation दे सकते हैं. So try to gather 3 to 4 at least recommendations on your profile, which are solid, which are sound, which are not untrue. They are important to have on your LinkedIn. That will increase your authenticity on LinkedIn. LinkedIn के ऊपर एक अपना algorithm लगा हुआ है, वो different तरीकों से आपके प्रोफाइल को रेट करता रहता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली. सो ये लिंक्डइन में रिकमेंडेशन को बहुत जरूरी है कि आप फिल आउट करें और उसमें अपना स्किल सेक्शन को बड़ा क्लियरली फिल आउट करें. एक बच्चे ने क्वेश्चन किया हुआ स्किल्स का कि हम अपनी स्किल्स को कैसे लिखेंगे वहां पे. ये यहाँ पे अभी किसी बच्चे ने स्किल्स का क्वेश्चन किया था. हाँ, स्किल्स. हफ्जा अवान ने पूछा हुआ कि हम अपने स्किल्स को किस तरह से इंडोर्स करवाएं अपने लिंक्डइन के ऊपर या उसको हाईलाइट कैसे करें. ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की स्किल्स की बात करें. मैंने शुरू में बोला कि एटलीस्ट 2 से 3 टेक्निकल स्किल्स और 2 से 3 सॉफ्ट स्किल्स का जिक्र करना जरूरी है. ठीक है, कि आपका क्या है, आप पब्लिक स्पीकर हैं, आप पीपल मैनेजमेंट स्किल हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेटा स्किल्स हैं आपके पास, आप गुड एट कोलैबोरेटिंग विद अदर्स हैं, रिसर्च एंगल आपके बहुत अच्छे हैं, यानी रिसर्चर हैं आप बहुत. क्या स्किल्स हैं आपके पास? आप एक्सेल को बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा काम करना आता है एक्सेल के ऊपर, आप इन्फोग्राफिक्स पे बहुत कंफर्टेबल हैं, यू आर अ गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यू आर गुड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको होता है पावर पॉइंट के ऊपर भी अपने बहुत ज्यादा काफी सारे वो है, काफी सारी चीजें हैं जो पावर पॉइंट में हम कर सकते हैं. सो किस तरह की स्किल्स हैं, अब ये बहुत रेलिवेंट है कि आपको पता है कि आप किस तरह की मतलब आप किस तरह का, आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने किन इंडस्ट्रीज को रीच आउट करना है. आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के पेजेस को फॉलो करें ऑन लिंक्डइन. ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि उनके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके प्लेटफॉर्म पे शो होना शुरू हो जाएंगी. जो रिसर्चेस वो करते हैं, जैसे मैकिंजी क्वार्टरली है, गूगल है, एप्पल है, इसी तरह एचपी है, और डिलाइट है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा रिच काम कर रहे हैं टू इंडोर्स स्टूडेंट स्किल्स एंड टू एनहेंस देम. और वो बहुत सारे, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो कई सारे सर्टिफिकेशंस कराते हैं बच्चों को जो फ्री हैं, पाकिस्तानी बच्चों के लिए भी. बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा फुली पेड स्कॉलरशिप्स को लिंक्डइन पर प्रमोट कर रहे होते हैं. So there is so much that you can do. There is so much you can learn from LinkedIn. There is not one way to learn from it. There is so much. So you just need to find evidence कि मैं कहाँ से करूँ. It's a beautiful platform that can have a wonderful, that can open up wonderful opportunities for you. बस आपने इसको देखना है. So कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है या अगर आप इंस्टा के ऊपर कोई बिजनेस रन करते हैं या आपका ब्लॉग है या वीलॉग है, अगर ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी वेबसाइट बनी हुई है कोई, तो आप वो लिखें. फोन नंबर मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ. ये देखना कि अगर यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर फोन नंबर ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. Professionally, it is not required. The only thing that is required professionally on LinkedIn is to have a email address. ठीक है, so I'll leave it up to you to see कि आपने किस तरह से इसको करना है. This is all from my side. So if there are any questions, I'll be very happy to take them now. अभी ये बहुत ब्रीफली मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन से इंट्रोड्यूस करवाया है. आप लोग जब इनको पॉपुलेट करने जाएंगे, आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. फिर उसमें भी एक तो ये कि देयर आर लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. इफ यू गेट स्टक, आप सिर्फ गूगल में लिखें हाउ टू डू दिस, वो आपको इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को फ्लैश करने का सैंपल्स फ्लैश कर देगा. 2, always remember, don't do cut copy paste. That will not help you in the long run. It is very easy to pick up कि किसी बच्चे ने कहाँ से cut copy paste किया हुआ है. वो लैंग्वेज आपकी authentic sound ही नहीं करती. ठीक है, वो खुद ही पता चल जाती है. LinkedIn के अंदर भी अपने तरीके हैं उस फेक चीज को पिक करने के, तो LinkedIn खुद ही उस प्रोफाइल को फेक में ही रखेगा अगर आपने ऐसे किया भी. So तीसरी बात, start making connections on LinkedIn.
सबसे इम्पोर्टेंट लोग आपके अपने पहले यूनिवर्सिटी के सर्कल के लोग हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो ग्रेजुएट करके जा चुके हैं, या आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्री से कनेक्शन है इनका, उनको ऐड करें। फिर उसके बाद ग्लोबल नेटवर्क है। आप ज़रूरी नहीं कि ग्लोबली किसी को जानते हो तब आपने उनको करना है। यू जस्ट हैव टू सी कि कनेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन लिंक्डइन, हाउ विल इट हेल्प यू। बहुत सारे लोग सिर्फ किसी और की पोस्ट पढ़ने के लिए कि ये इतने बड़े लेवल के लोग हैं, अगर ये अपनी पोस्ट शेयर करते हैं और मैं अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाऊं तो वो सारी नोटिफिकेशंस मुझे आने लग जाएंगे। सिर्फ इसी लोग कनेक्ट होते हैं, फॉलो करते हैं। अगर आपको पता है आपको लिंक्डइन पे फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे उनके नाम के ऊपर रख के, ठीक है, तो वो इस तरह से 3 डॉट्स नजर आएंगे आपको, जहां उनको कनेक्ट का लफ्ज लिखा आता है ना, तो वहां पे साथ में आपको 3 डॉट्स नजर आएंगे। वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉलो की ऑप्शन होती है। आई विल एडवाइस कि अगर आपके बहुत बड़ा प्रोफाइल है और वो आपको नहीं, आपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी, आपको फॉलो नहीं कर रहे, आपको कनेक्ट नहीं कर रहे, आप परेशान ना हो। आप वापस जाएं, विड्रॉ कर लें अपना कनेक्शन, और उनका जो 3 डॉट्स हैं उनमें फॉलो की इजाजत होती है, आप वो फॉलो कर लें। सो एटलीस्ट आपका लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा सर, ठीक है, सॉरी। तो और दूसरा ये कि आप अपनी जो जितने भी अभी सेशंस यूनिवर्सिटी में जितने टाइम रह गया आपके पास, प्लीज उसकी पिक्टोरियल एविडेंसेस बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट बना के लोगों को टैग कर सकते हैं, वो करें। लिंक्डइन पे आप अपना प्लेटफॉर्म बना के लोगों के जो भी अटेंड कर रहे हैं, आप उनका पिक्टोरियल एविडेंस लगा के जरूर एक पोस्ट बना के लोगों को टैग करें, थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फॉर डूइंग इट, वंडरफुल नोइंग, जो भी प्रेजेंटर थे या जो भी लोग जो लर्निंग थी, आप उसके बारे में बात करें। दैट विल हेल्प यू स्टार्ट, स्मॉल स्टेप्स विल स्टार्ट डेवलपिंग वर्थ फॉर योर वेबसाइट लिंक्डइन, और आपके प्रोफाइल को ऐसा ऐसा व्यूज मिलने लगेंगे। लोग आपके बारे में जो आपका आपने जितना चीजें लिखी होंगी, आपको लोग उनको पढ़ेंगे, और कभी उनको याद रह जाएगा, कभी नहीं याद रहेगा, लेकिन this is how we all are. This is the path that we all have to follow. These are the things, a few things that you need to follow in order to become, uh, ये सब आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये बात याद रखें, जो ओवरनाइट सक्सेस आप लोगों की देखते हैं, उसके पीछे 20-30 साल का स्पेड वर्क होता है, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्डअप करेंगे। आई वुड एडवाइज ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट पॉपुलेटिंग योर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, और अपने सीवी को भी ऐसा ऐसा ट्वीक करना शुरू करें, उसको सही तरीके से चलाना शुरू करें, उसमें सही चीजें डालना शुरू करें, सो दैट योर लिंक्डइन प्लस योर सीवी आर टेलिंग द सेम पिक्चर अबाउट यू। Now I'll take questions if there are any. हिना ने पूछा है कि जो लोग न्यू ग्रेजुएट्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो क्या लिखें बेटे। शायद आपने लेट ज्वाइन किया। मैंने बड़ा डिटेल में बताया है कि अगर आपने वॉलंटियर वर्क किए हुए हैं, अगर आप डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही हैं अपनी मॉड्यूल्स को पास करने के लिए, अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रही हैं, या मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से अपना एकेडमिक सफर कर रही है, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू सी कि मैंने जो अभी रिपोर्ट्स लिखी हैं या ग्रुप वर्क किया है, उसमें मैं क्या लिंक अपनी स्किल्स क्या बिल्डअप कर रही हूँ। तो यू कैन टॉक अबाउट द स्किल्स, यू कैन टॉक अबाउट द वॉलंटियर वर्क, यू कैन टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ। आपने ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस जितनी लर्निंग की है, आप उसके बारे में बात लिख सकती हैं। सनिया शमशाद ने कहा है कि क्या इस रिकॉर्डिंग, हाँ आई थिंक सर्कल वुमेन की सर्कल वर्कशॉप की जो टीम है वो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर रही है ऑलरेडी, सो आई थिंक दे कैन आंसर दैट। Any other thing that I can help you with? I'm sorry that you couldn't hear the sound of that video. मैंने उसका लिंक आपके लिए रख दिया है, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। There are many other beautiful videos available on YouTube to learn कि अपने आप बिल्कुल YouTube से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अभी यहाँ से ना समझ आई हो तो YouTube पे बहुत कुछ पड़ा है जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप सब बच्चे इस प्लेटफॉर्म, इस वर्कशॉप के बारे में कोई फीडबैक दें। ये फीडबैक मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी लर्निंग में एडिशन होगा। और अगर आप लोग इसके बारे में कोई पोस्ट बनाएंगे और उसमें मुझे टैग करेंगे, आई बी मोर देन हैप्पी। और राइट समथिंग फॉर माय रिकमेंडेशन ऑन लिंक्डइन, दैट विल बी व्हाट आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू।
It was lovely speaking to all of you. I wish I was there in person to deliver it, but the beauty of this virtual world is we're still connected in a wonderful way. So thank you so much. If you don't have a question, anything for me, thank you, Bete Manur. Thank you for appreciating. थैंक यू बुशरा, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को कुछ समझ आया है, मैंने आपकी लर्निंग में ऐड किया है। यही मेरी जॉब थी आज, शुक्र है कि मैंने अपना गोल मीट कर लिया। थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है कि आप लोग जो भी काम करें अल्लाह उसमें आपको बहुत इज्जत दे, आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करे, आपके जो भी गोल्स हैं लाइफ में अल्लाह मियाँ वो उनके अंदर आपके लिए बरकतें डाल दे। सो इस दुआ के साथ कि आप सब लोग जो करना चाहते हैं अल्लाह अपनी आसानियों से, अपने नूर से आपकी जिंदगियों को भर दे। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अपनी करने, चाहे एकेडमिक हैं या नॉन एकेडमिक हैं, अल्लाह मियाँ आपको आपके वालिदैन के लिए बहुत ज्यादा आसानियों से भरा हुआ एक तोहफा बना दें। थैंक यू सो मच बेटे, बहुत दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई एम एंडिंग दिस इज आई विल जस्ट टेक a cue from Circle's workshop. If it's allowed for me to leave the meeting. अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे। आप जो कुछ करना चाहते हैं अल्लाह में आपको बहुत तरक्कियां अता करे। बहुत शुक्रिया बेटे, दुआ में याद रखिएगा। I hope to see you soon on for another platform or for another workshops inshallah. हाँ जी, I think आप म्यूट हुए हुए हैं। सर्कल टीम, मेरे ख्याल आपका म्यूट हुआ हुआ है वो माइक। तो if it's okay, is it okay for me to leave the platform? Thank you, bete. Thank you. Khuda Hafiz. Fi Amanullah. Thank you. Khuda Hafiz.